خان کے وکیل ہیں وہ اپنے دلائل دیں گے. سماعت اس وقت جاری ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ اپنے جو ریمارکس ہیں وہ دے رہے ہیں. چیف جسٹس کے ریمارکس ابھی جاری ہیں. فہیم اختر بتائے گا حامد خان کے علاوہ دیگر کون سے وکلا ہیں اور جو کہ آج دلائل دیں گے اور چیئرمین تحریک انصاف. ٹھیک ہے، فہیم اختر سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. ناظرین آپ کو عدالتی پیشی کا احوال بتا رہے ہیں. چیف جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس اس وقت جاری ہیں. تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں. ہمارے نمائندے عمران وسیم نے ہمیں جان کیا ہے. عمران وسیم، اس سے پہلے فہیم اختر عدالتی کارروائی کا احوال بتا رہے تھے، چیف جسٹس کی جانب سے ریمارکس دیے جا رہے تھے. ابھی تازہ ترین صورتحال کیا ہے عدالتی کمرے میں؟ جی بالکل، عمران خان جو ہے وہ عدالت میں جیسے پیش ہوئے اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا اور 5 رکنی بینچ کے جو سربراہ ہیں چیف جسٹس اطہر من اللہ، وہ جیسے اپنی سیٹ پر براجمان ہوئے انہوں نے عمران خان کے وکیل حامد خان سے وہ مخاطب ہوئے اور ان سے یہ کہا کہ آپ چونکہ عمران خان کے وکیل ہیں تو آپ روسٹم پر آ جائیں. اور جب حامد خان روسٹم پر آئے تو چیف جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے ریمارکس دیے گئے جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے خود دیکھا ہے کہ جو کچہری کے حالات کیا ہیں، لوور جوڈیشری میں کس حالت میں وہ کام کر رہی ہے. اور پھر چیف جسٹس نے حامد خان عمران خان کے وکیل سے کہا کہ خان صاحب آپ عمران خان کے وکیل ہیں، ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ اس معاملے میں یہاں عدالت میں آئے ہیں، لیکن مجھے عمران خان سے ایسے بیان کی بالکل توقع نہیں تھی. اور چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کے موکل کا ماتحت عدلیہ بارے بیان کی توقع نہیں تھی. ماتحت عدلیہ ایلیٹس کی عدلیہ نہیں، اسے اہمیت دینے کی ضرورت ہے. چیف جسٹس یہ کہہ رہے تھے کہ جو ماتحت عدلیہ ہے وہاں پر عام سائلین جاتے ہیں تو ماتحت عدلیہ کو بھی وہی جو ہے وہ امپورٹنس ملنی چاہیے جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کو ملتی ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ 70 سال میں عام آدمی کا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں اسے ابھی تک رسائی نہیں مل پائی. کم از کم جن حالات میں رہ کر وہ عدلیہ کام کر رہی ہے اسے اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. اور چیف جسٹس نے کہا کہ میں توقع کر رہا تھا کہ احساس ہوگا کہ غلطی ہو گئی ہے. یہ اب تک کی عدالتی کارروائی ہے اور عمران خان کے وکیل حامد خان کو مخاطب کرتے ہوئے چیف جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے ہیں. یعنی ریمارکس یہ ہے کہ وہ عمران خان کا جو بیان تھا خاتون جج سے متعلق اس پر چیف جسٹس نے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ عمران خان اس قسم کا بیان دیں گے، بلکہ انہوں نے کہا میں تو توقع کر رہا تھا کہ اس بات کا احساس ہوگا کہ غلطی ہو گئی ہے، لیکن غلطی کا احساس جو ہے وہ نہیں کیا گیا. جی ٹھیک ہے. عمران وسیم یہ بھی بتائے گا کہ دیگر وکلا کے دلائل کب شروع ہوں گے؟ دیکھیں، حامد خان جو ہے وہ مین وکیل ہیں عمران خان صاحب کے. ان کی لیگل ٹیم میں شعیب شہین بھی شامل ہیں. ان کی لیگل ٹیم میں سابق اسلام آباد کے جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں نیاز اللہ نیازی وہ بھی شامل ہیں. رانا وقار سابق ایڈیشنل اٹارنی جنرل وہ شامل ہیں. دیگر 2 وکلا شامل ہیں. تو 6 رکنی یہ ٹیم ہے. تو ابھی جو دلائل دینے ہیں وہ حامد خان ہی دیں گے، لیکن ابھی تو دلائل کیا دینے ہیں، تحریری جواب تو کل ہی عدالت میں جمع کروایا جا چکا تھا. ابھی تو جج صاحبان جو عمران خان صاحب سے کے ریمارکس سے جو جملہ تھا ان کا خاتون جج سے متعلق اس پر چیف صاحب جو ہے وہ اپنی آبزرویشن کا اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایک بڑی پارٹی کے جو سربراہ ہیں سابق وزیر اعظم ہیں ان سے اس قسم کے بیان کی توقع نہیں تھی. جن حالات میں جو لوور جوڈیشری ہے ماتحت عدلیہ ہے وہ کام کر رہی ہے، عام سائلین کو انصاف فراہم کیا جا رہا ہے تو اس سے تو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے تھا. اور چیف جسٹس نے کہا کہ میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ غلطی کا احساس ہوگا اور غلطی پر جو ہے وہ غلطی کا احساس ہوگا اور غلطی جو ہے اس پر عدالت کے سامنے جو جواب آیا ہے اس میں یعنی جو کل جواب جمع کروایا گیا اس میں کوئی معافی جو ہے وہ نہیں مانگی گئی، لیکن یہ ضرور کہا گیا کہ اگر غیر مناسب الفاظ سے تو اس پر وہ الفاظ واپس لینے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو تحریری طور پر جواب جمع کروایا گیا ہے اس میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے معافی نہیں مانگی گئی؟ جی بالکل، تحریری جواب میں خان صاحب کی جانب سے معافی نہیں مانگی گئی تھی، بلکہ یہ کہا گیا تھا کہ میں تو اس بات پر یقین ہی نہیں رکھتا کہ جو جج صاحبان ہیں ان کے احساسات کو مجروح کیا جائے، لیکن اگر میرے کوئی الفاظ نامناسب تھے، غلط تھے تو میں اسے واپس لینے کے لیے تیار ہوں. تو یہ پروویژنل جواب بھی عدالت میں جمع کروایا گیا تھا اور اب جب اس کیس کی باقاعدہ طور پہ پہلی کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے، عمران خان بھی عدالت میں پیش ہو چکے ہیں، ان کی لیگل ٹیم بھی پیش ہو چکی ہے، اٹارنی جنرل بھی موجود ہیں، ایڈیشنل اٹارنی جنرل بھی موجود ہیں، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد بھی موجود ہے. تو عمران خان صاحب کے کل کے جمع کروائے گئے بیان کا بھی جو ہے وہ جائزہ لیا جائے گا. ٹھیک ہے. عمران وسیم بینچ کا احوال بتائے گا. چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں جو لارجر بینچ تشکیل کیا گیا اس سے پہلے 3 رکنی بینچ سماعت کر رہا تھا، اس میں کون کون سے ججز تھے اور جب اس بینچ میں توسیع کی گئی ہے مزید کن ججز کو شامل کیا گیا؟ جی پہلا جو 3 رکنی بینچ تھا جس نے خان صاحب کو آج کے لیے شو کاز نوٹس جاری کیا تھا 31 اگست کے لیے کہ ذاتی حیثیت میں پیش ہوں، وہ 3 رکنی بینچ تھا. اس میں جسٹس محسن اختر کیانی بینچ کی سربراہی کر رہے تھے، ان کے ساتھ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار شامل تھے. لیکن اس سماعت میں ہی عدالت نے کہا تھا کہ اس بینچ کو بڑا بنایا جائے، اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے.
तो आज 5 रुकनी बेंच है, वो 3 जज साहबान भी शामिल हैं जिन्होंने पहली समाअत करके इमरान खान को ذاتی हैसियत में शोकास नोटिस जारी किया था। उनमें अब चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला जो कि समर वेकेशन से वापस आ चुके हैं, अपनी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं, वो अब बेंच को लीड कर रहे हैं, उनकी सरबराही कर रहे हैं। और 5वें जो जज शामिल किया गया वो जस्टिस महमूद जहांगीरी हैं, उन्हें भी इस बेंच में शामिल किया गया है और कार्रवाई का आगाज हो चुका है। ठीक है, इमरान वसीम अदालती कार्रवाई का अहवाल बता रहे थे। साथ ही रहेगा नाज़रीन को ताज़ा तरीन खबर दें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत अब शुरू हो चुकी है। इमरान खान और उनके वकला कमरा अदालत में मौजूद हैं। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया जो कि इस केस की समाअत कर रहा है। पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त और गैर मामूली इंतजाम देखे गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूम नंबर 1 में दाखिले के लिए पासेस भी जारी किए गए और इस मौके पर वकला और पुलिस अफसरान और सिक्योरिटी अफसरान में तल्ख कलामी भी हुई। सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम देकर इमरान खान की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। सहाफ़ी से गैर इसमें गुफ्तगू में कहा गया कि समझ नहीं आ रही क्यों इतनी सिक्योरिटी लगाई गई है। मैंने तो अदालती कार्रवाई का कहा था और इससे पहले कभी इतनी सिक्योरिटी नहीं देखी। ताहम आपको बताते चलें कि चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला की जानिब से रिमार्क्स दिए जा रहे हैं और उन्होंने मुखातिब करके इमरान खान के वकील हामिद खान को ये कहा है कि जी हामिद साहब आप बात करें, इस अदालत ने आपको हमेशा अदालती मुआविन मुकर्रर किया है। जबकि अदालत की जानिब से भी रिमार्क्स दिए गए कि 3 साल में ये अदालत वफाकी काबीना को मामलात भेजती रही, काश उस वक्त भी ये आवाज उठाते। इस्तफसार किया गया कि जवाब से लगता है कि इमरान खान को एहसास ही नहीं कि उन्होंने क्या किया है। इससे पहले जो गुज़श्ता समाअत हुई 3 रुकनी बेंच ने जो समाअत की थी उसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया था। ताहम साथ ही शोकॉज नोटिस भी जारी किया गया था और उसमें कहा गया था कि क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करें और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से जवाब तलब किया गया था उनकी तकरीर में इस्तेमाल किए गए अल्फाज का। और गुज़श्ता रोज जो वकला की जानिब से तहरीरी तौर पर जवाब जमा करवाया गया उसमें कहीं भी इमरान खान की जानिब से माफी नहीं मांगी गई, जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया है। हमारे नुमाइंदे इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं। इमरान वसीम, एक बार फिर अदालती कार्रवाई का अहवाल बताएगा, क्या हामिद खान के दलाइल शुरू हो चुके हैं? जी बिल्कुल, इमरान खान के वकील हामिद खान ने दलाइल का आगाज कर दिया है, लेकिन उनके दलाइल का आगाज करने से पहले चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए हैं कि मैं तो ये तवक्को कर रहा था कि जो बयान दिया गया उस पर शर्मिंदगी और अफसोस का इजहार किया जाएगा। जिस तरह से गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता, जबान से कहे हुए अल्फाज भी वापस नहीं आते। और चीफ जस्टिस ने कहा कि एक सियासी जमात के लीडर्स की फॉलोइंग होती है, उसको कुछ कहते हुए सोचना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए। उसका 3 साल में बगैर किसी खौफ के हमने चार्जर का इशू उठाया। और चीफ जस्टिस का यह भी कहना था कि इमरान खान का कद के आदमी का क्या ऐसा करना चाहिए था, जिस कद काट के वो आदमी है उन्हें इस तरह का स्टेटमेंट देना चाहिए था। और फिर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि सबसे बदतरीन टॉर्चर जबरी गुमशुदगियां हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे तवक्को थी कि गलती हो गई है, तवक्को थी कि आप इन अदालतों में जाकर कहेंगे कि हमें आप पर एतबार है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरान खान को यह क्रेडिट जरूर जाता है कि उन्होंने जुडिशल कम्प्लेक्स बनाया, मुझे तवक्को नहीं थी, गलती नहीं थी कि कहा जाएगा गलती हो गई है, तवक्को थी कि आप इन अदालतों में जाकर कहेंगे कि आप पर हमें एतमाद है, अदलिया पर हम ट्रस्ट करते हैं। टॉर्चर का मामला तो हम 3 साल बिला खौफ व खतर जो है इसी अदालत में उठाया गया। टॉर्चर की तो 70 साल में रियासत ने खुद हौसला अफजाई की है। चीफ जस्टिस ने हामिद खान को मुखातिब करते हुए कहा, इमरान खान खुद भी कमरा अदालत में मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक सियासी जमात का रहनुमा इमरान खान, हर लफ्ज जो है वो जरूरी होता है। इमरान खान के इन्फाज में एक खातून जज को धमकी दी गई, तहरीरी जवाब में हमें जो उम्मीद नजर आ रही थी वो नहीं मिली। इस अदालत ने 3 सालों से मुसलसल टॉर्चर के मामले को उठाया। चीफ जस्टिस ने कहा कि तवक्को थी कि आप यहाँ आने से पहले मातहत अदलिया होकर आएंगे, तवक्को थी कि आप कंडक्ट जाहिर करेंगे कि कानून की अमलदारी पर आप यकीन रखते हैं। जिस मातहत अदलिया पर बात की गई वो आम आदमी की अदालत है, आम आदमी को आज भी हाई कोर्ट तक रसाई हासिल नहीं। चीफ जस्टिस का यह भी कहना था कि जवाब से लगता है कि इमरान खान को एहसास ही नहीं कि उन्होंने कहा क्या है। और चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में यह भी कहा कि माजी में 2 सहाफियों के केस में सब कुछ वादे था, इस अदालत ने इस मामले को वफाकी काबीना को भिजवाया था, काश उस वक्त भी टॉर्चर वाले मामले पे गौर किया जाता तो आज ये सब कुछ ना होता। चीफ जस्टिस ने इमरान खान के वकील से कहा कि आज ना थाने में टॉर्चर होता है और ना ही कोई गुमशुदगी, आपके मौकल को एहसास ही नहीं कि उन्होंने कहा क्या है। चीफ जस्टिस का मजीद ये कहना था कि जवाब से लगता है कि इमरान खान को एहसास नहीं कि उन्होंने खातून जज से मुतल्लिक क्या अल्फाज कहे हैं। और फिर नाज़रीन, इसके बाद जो हामिद खान है इमरान खान के वकील, उन्होंने अपने दलाइल का आगाज किया और दलाइल के आगाज में चीफ जस्टिस ने उनसे फिर कहा कि जी हामिद खान साहब आप बात करें, इस अदालत ने आपको हमेशा अदालती मुआवन मुकर्रर किया है। अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो कि बात करना चाहते थे उन्हें बात करने से रोक दिया और
ایڈوکیٹ जनरल इस्लामाबाद पर बर्मी का इजहार भी किया और चीफ जस्टिस ने कहा कि तौहीन अदालत का मामला अदालत और इमरान खान के दरमियान है और चीफ जस्टिस ने कहा कि टॉर्चर की किसी भी सतह पर इजाजत नहीं दी जा सकती। इस अदालत के कायम मकाम चीफ जस्टिस ने शहबाज गिल का मामला वापस रिमांड किया था। आपको पता है कि कायम मकाम चीफ जस्टिस ने मामला मातहत अदलिया को भिजवाया था और इसके बाद चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि यह मामला कोर्ट और जिससे मुतल्लिक है तौहीन अदालत का, यह उनके दरमियान है, यानी अदालत और इमरान खान के माबैन है। और ये कहते हुए चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को बात करने से रोक दिया। जी ठीक है, इमरान वसीम बताएगा कि अदालती कार्रवाई में सलमान सफदर की जानिब से अदालत का तहरीरी हुक्मनामा भी पढ़कर सुनाया गया। कौन सा तहरीरी हुक्मनामा था जिसमें शोकॉज दिया गया था चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को? जी बिल्कुल, सलमान सफदर भी इमरान खान की लीगल टीम का हिस्सा हैं, वो 5वें वकील हैं। उन्होंने जो शोकॉज नोटिस जारी किया गया था 3 रुकनी बेंच की जानिब से, उस ऑर्डर का हवाला दिया और उस ऑर्डर को उन्होंने अदालत में पढ़ा और वो ये बता रहे हैं कि 3 रुकनी बेंच की जानिब से इमरान खान को प्राइमा फेशियाई जो है वो कंटेम्प्ट का, तौहीन अदालत का जो है वो शोकॉज नोटिस जारी किया गया है और उस नोटिस को कंप्लाई करते हुए आज साबिक वजीर आजम चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जो है वो अदालत के सामने पेश हो गए हैं। ठीक है, इमरान वसीम ये भी बताएगा कि अभी चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए जा रहे हैं या हामिद खान अपने दलाइल जारी रखे हुए हैं? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस भी रिमार्क्स दे रहे हैं, लेकिन अदालत की जानिब से फिलहाल जो है वो हामिद खान को दे दिया है कि कह दिया गया है कि आप बात करें, आप अपने क्लाइंट इमरान खान की चेयरमैन पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन्होंने आपकी खिदमात को हासिल किया है। इस अदालत ने हमेशा आपको रिस्पेक्ट दी है, आपका एहतराम किया है और बुनियादी हकूक का कोई भी मामला हो उसमें इसी अदालत ने आपको अदालती मुआवन भी मुकर्रर किया है। तो आप दलाइल दें कि आप अपने क्लाइंट का किस तरह से दिफा करेंगे। तहरीरी जवाब भी आपका अदालत में आ चुका है और तहरीरी जवाब में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई माफी या फिर अफसोस का या फिर पशमानदी का इजहार किया जाएगा। और आज अदालत में आने से पहले भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप अदलिया में जाएंगे, लोअर कोर्ट में जाएंगे और वहां पर जाकर आप कहेंगे कि हमें मातहत अदलिया पे एतमाद है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हामिद खान ने अपने दलाइल का आगाज कर दिया है और जो 5 रुकनी बेंच है वो हामिद खान के दलाइल को जो है वो सुन रहा है। ठीक है, इमरान वसीम अदालती कार्रवाई की ताज़ा तरीन सूरत हाल से हमें अपडेट कर रहे थे। साथ ही रहेगा नाज़रीन को जो रिमार्क्स दिए जा रहे हैं उस मुतालिक आगाह करते चलें। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स में कहा गया है कि इस अदालत ने कभी तनकीद की परवाह नहीं की। इसके अलावा चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह की जानिब से शहबाज गिल केस और रैली से खिताब का हवाला भी दिया गया। कहा गया ये पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कब निपटाई और तकरीर कब की गई, ये भी पूछा गया। जबकि पटिशन 22 अगस्त को निपटाई गई और तकरीर 20 अगस्त को की गई, वकील की जानिब से ये दलाइल में कहा गया। जबकि मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा था तो तकरीर की गई। चीफ जस्टिस की जानिब से अहम रिमार्क्स दिए गए हैं। जबकि चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि मामला मुबैना तौहीन अदालत करने वाले और अदालत के दरमियान है। फिरदौस आशिक अवान वाली जजमेंट आपने पढ़ी है, चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया जिस पर वकील ने दलाइल दिए कि जी हमने ये जजमेंट देखी है। जबकि अदालत ने ये भी इस्तफसार दिया है कि क्या ये रिकॉर्ड अदालत के इल्म में लाया गया था। और सलमान सफदर एडवोकेट की जानिब से कहा गया अडियाला जेल पंजाब हुकूमत के जेर इंतजाम है। आपको बताते चलें कि चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में ये भी कहा कि अडियाला जेल किसके मातहत है, किसी कैदी पर जरा भी तशद्दुद हो तो क्या कोई जेल उसको इस तरह रख लेती है। जबकि सलमान सफदर एडवोकेट को बताना था कि अडियाला जेल पंजाब हुकूमत के जेर इंतजाम है। अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया क्या ये रिकॉर्ड अदालत के इल्म में लाया गया। आपको बताएं कि इससे पहले सलमान सफदर ने अदालत का तहरीरी हुक्मनामा भी अदालत के रूबरू पढ़कर सुनाया। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की जानिब से कहा गया कि मैं इमरान खान के सारे बयानात रिकॉर्ड पर ले आता हूं और चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून को बोलने से रोक दिया और कहा कि आपको पता है कायम मकाम चीफ जस्टिस ने मामला मातहत अदालत को रिमांड किया था। अदालत की जानिब से अहम रिमार्क्स दिए गए। कहा गया टॉर्चर की किसी भी सतह पर इजाजत नहीं दी जा सकती। इस अदालत के कायम मकाम चीफ जस्टिस ने शहबाज गिल का मामला वापस रिमांड किया था। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। जबकि अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को बात करने से भी रोक दिया और अदालत ने एडवोकेट जनरल पर इजहार बरहमी भी किया। बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद है। इमरान वसीम बताएगा ताज़ा अदालती कार्रवाई में क्या कुछ चल रहा है। जी बिल्कुल, एडवोकेट जनरल जो इस्लामाबाद है वो इमरान खान के माजी के कुछ और बयानात जो है वो अदालत के रिकॉर्ड पे लाना चाहते थे, जिस वजह से अदालत की जानिब से एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की सरजनिश की गई और चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि शहबाज गिल टॉर्चर केस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया था। चीफ जस्टिस ने पूछा इमरान खान के वकला से कि जो अडियाला जेल है वो किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज टॉर्चर की जरा सी भी शिकायत हो तो क्या जो जेल के हुकाम है वो मुल्जम को बगैर मेडिकल अडियाला जेल में दाखिल